آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ مدینہ منورہ بس حادثے کے متاثرین میں ایکس گریشیا کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ ریاستی وزیر محمد اظہرالدین اور مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے ہاتھوں چیکس کی گئی تقسیم۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرنے بی جے پی اور بی آر ایس کی سازش، جمہوریت کے لیے سنگین دھکا، تلنگانہ کانگریس کا الزام۔ حیدرآباد کے حدود میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا چوتھا واقعہ، ملکاج گری میں شوہر نے دوسری بیوی کو گولی مار دی۔ گچی باؤلی میں رہزنی کی واردات میں ملوث معمے کو پولیس نے 3 دنوں میں حل کر لیا، نیپالی ٹولی گرفتار، مسروقہ زیورات کیے گئے برآمد۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی کی دختر ماہین اویسی نے MBBS کے امتحان میں غیر معمولی نشانات کے ساتھ امتیازی کامیابی کی حاصل۔ حیدرآباد کے 3 بھائی دریائے گوداوری میں غرق، نرمل ضلع کے باسر میں پیش آیا حادثہ۔ دبئی حادثے کے متاثرین کے لیے UAE کے تاجر ڈاکٹر شمشیر ویالیل کا عطیہ، 2.6 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ ناظرین، نیوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ محمد اظہرالدین اور مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے مدینہ منورہ بس سانحہ کے شہداء کے 2 ورثہ میں مالی امداد کے چیکس حوالے کیے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کے عمرہ زائرین نے 17 نومبر 2025 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب بس حادثے میں اپنی جانیں گنوائی تھی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی تھی، تاہم مابقی چیکس کی تقسیم 4 شنبے کو عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مدھیہ پردیش سے کانگریس کی راجیہ سبھا امیدوار میناکشی نٹراجن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے تمام تفصیلات رکھی گئی ہیں اور ہمیں آج بھی ملک کے دستوری اداروں پر بھروسہ ہے اور ہم دستوری اداروں کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی دختر ماہین اویسی نے MBBS کے امتحان میں غیر معمولی نشانات کے ساتھ امتیازی کامیابی حاصل کی۔ وہ کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے تحت ریاست کے تمام میڈیکل کالجوں میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والی 15 طلباء میں شامل ہیں، جبکہ انہوں نے دکن کالج آف میڈیکل سائنس میں ٹاپ کیا ہے۔ بھتیجی کی شاندار کامیابی پر اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی اور برہان الدین اویسی ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اعتماد نے مبارکباد دی
और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माहिन अवैसी मोहम्मद शाह आलम रसूल खां की बहू और मोहम्मद साहिल रसूल खां डायरेक्टर शादा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ज़ौजा हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इसे जमहूरियत के लिए संगीन धक्का करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासी साजिश का ये हिस्सा है। अपोजिशन की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी जमहूरी और दस्तूरी इदारों को कमजोर कर रही है। वोटर लिस्ट से राय दहिंदों का नाम निकालना, इंतखाबी धांधलियां करना बीजेपी के सियासी कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम कर रहा है या बीजेपी के हक में काम कर रहा है। वोट चोरी के बाद बीजेपी अब पार्लिमानी नशिस्तों की चोरी कर रही है। अपोजिशन के उम्मीदवारों को तकनीकी बुनियादों पर इंतखाबी मुकाबले से नाअहल करार देना जमहूरियत की रूह की मनाफी है। कांग्रेस पार्टी जमहूरी और आइनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। दुबई की एमिरेट्स रोड पर पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 7 हिंदुस्तानी वर्कर्स की हलाकत के बाद मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए UAE के मारूफ NRI ताजिर, मुक़िल शख्सियत और बुरजेल होल्डिंग्स के चेयरमैन व CEO डॉक्टर शमशेर वियालेल ने 2.6 करोड़ रुपये के इंसानी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। हादसे में फौत होने वाले 7 अफराद में तेलंगाना के ज़िले जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वर्कर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर शमशेर व्यालेल ने बताया कि मरने वाले हर फर्द के ख़ानदान को 26 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि ज़ख्मी होने वाले 9 अफराद के तिबी और बहाली ज़रूरियात के लिए मजमूई तौर पर 47 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के अफराद की हंगामी सफ़र और रिहाइश के अखराजात के लिए 18 लाख रुपये और मुतासरा ख़ानदानों के बच्चों की तालीम के लिए 13 लाख रुपये की इजाफी इमदाद का भी ऐलान किया। डॉक्टर शमशेर व्यालील ने कहा कि उनका इस इमदाद से कोई कारोबारी या सियासी मफाद वाबस्ता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ज़रूरतमंद और गमज़दा ख़ानदानों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कौंसल खाने और मुतल्लिक़ा हकाम के ताउन से इमदादी रकम बराह रास्त मुतासरा ख़ानदानों तक पहुँचाई जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साला दौरे हुकूमत को खिराज पेश किया। इस सिलसिले में एक किताब की रस्मी इजरा भी अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। बग़ैर किसी वक्फे के नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि UPA के 10 साला दौरे इख्तिदार में सिर्फ घोटाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के 12 साला दौरे इख्तिदार में तरक्की, फलाह व बहबूद और कौमी सलामती नज़र आती है। स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ बैतुल खला बनाए गए। तेलंगाना को 5 वंदे भारत ट्रेनें दी गईं। हल्दी बोर्ड बनाया गया। तेलंगाना के लिए नई रेलवे लाइंस और 45 रेलवे स्टेशन की जदीदकारी की गई। उन्होंने दावा किया कि जो हशर KCR का हुआ है, रेवंत रेड्डी का भी होगा। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि मीनाक्षी नटराजन के पर्चे नामजदगी की मनसूखी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के MP सी किरण कुमार रेड्डी ने मीनाक्षी नटराजन के मध्य प्रदेश में पर्चे नामजदगी की मनसूखी के लिए बीजेपी और BRS पर साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और BRS मिलकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए काम कर रही हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन पर एक खानगी शिकायत दर्ज हुई थी और उसे फॉर्म 26 में केस के तहत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ఐటీ మినిస్టర్గా కేటీఆర్ గారు నేర్చుకుంది ఏంది అంటే ఈ తెలుగు స్క్రైబ్ పెట్టించుడు నేర్చుకుంటు ఇదానే కేటీఆర్ రోజు ఇదే పని మీకు భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కూని కాపాడుతున్న సమయంలో నువ్వు పెట్టాల్సిన పోస్టులు ఏంది బీజేపీకి అగైనెస్ట్గా పెట్టాల్సిన పోస్టు పెట్టకుండా అక్కడ నామినేషన్ రిజెక్ట్ అయితే దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారికి లింక్ పెట్టి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టాలని ఈ దరిద్రపు తెలుగు స్క్రైబ్ దాంట్లో చూపిస్తారా?
ఇదా తెలంగాణ ప్రజలు చూడండి, ఈ తెలుగు స్క్రైబ్ అనేదాన్ని మీరు వెనకకు పోయి చూడరు. ఎక్కడన్నా మాట్లాడితే 4 మధ్యన అతికిచ్చేసి తప్పుడు ప్రచారం. ఇది చూడండి, దీంట్లో మీనాక్షి నటరాజన్ గారి నామినేషన్. कमिश्नर हाइड्रा ए.वी. रंगनाथ एक अराजी तनाज़े केस में अपने अहकामात की तामील में ताख़ीर पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने उजलत में की गई कार्रवाई की ज़रूरत पर सवाल उठाया और ख़बरदार किया कि इस तरह का तर्ज़ अमल किसी ऑफिसर के कैरियर को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। अदालत ने अराजी तनाज़े केस में अपने अहकामात की तामील पर ताख़ीर पर एजेंसी को फटकार लगाई। अगरचे अदालत ने हिदायत पर अमल दरामद के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त को बंद कर दिया, लेकिन उसने कमिश्नर की जानिब से इस मामले को संभालने और कोर्ट के रूबरू दाखिल करदा हलफनामे के मुंदरजात पर नाराज़गी का भी इजहार किया। वाज़ेह है कि मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के सुराराम में सर्वे नंबर 105 में खानगी अराजी से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस N.V. श्रवण कुमार ने हाइड्रा के पब्लिक नोटिस बोर्ड्स लगाने और अराजी को तहवील में लेने से मुताल्लिक़ इक़दामात करने के फ़ैसले पर सवाल उठाया, जबकि तनाज़ा अभी भी ज़ेर इल्तिवा है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौम की तामीर की बुनियाद रखी थी। मोदी की 12 साल हुक्मरानी को नुमायां करना जवाहरलाल नेहरू की तारीख की तौहीन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पंडित नेहरू की खिदमत को हक़ीर समझते हैं वो बायसे मज़म्मत हैं। आज़ादी के वक्त मुल्क को खुराक, बेरोज़गारी, सनती पसमानदगी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना था, लेकिन पंडित नेहरू वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ऐसे हालात से हिंदुस्तान को खुद इन्हिसारी की तरफ लाया। ज़राअत, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियादें रखीं। पंडित नेहरू के 5 साला मंसूबे, पब्लिक सेक्टर की सनतें, आबपाशी के मंसूबे और आला तालीमी इदारे हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद साबित हुए हैं। भाखरा नंगल और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में करोड़ों किसानों को आबपाशी के जरिए सहूलत फराहम की गई। मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इससे राह हमवार हुई। मुल्क के मुस्तक़बिल को जहन में रखते हुए पंडित नेहरू के जरिए रखी गई बुनियाद की वजह से आज कई शोबे तरक्की की सिमत गामज़न हैं। पंडित नेहरू की तहरीक और कौम साजी में उनका किरदार हिंदुस्तानी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు వేసినటువంటి పునాది మేరకే దేశం ఈరోజు నిర్మాణం జరిగింది. ఆనాడు స్వతంత్రం వచ్చినాడు ఆహార ధాన్యాల కొరత, గుండు పిన్ను తయారు చేసే వ్యవస్థ లేని దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడే విధంగా ముందు చూపుతోటి అభివృద్ధి చేసినటువంటి వ్యక్తి నెహ్రూ గారు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన నెహ్రూ గారు పరిపాలించిన దానికంటే ఎక్కువ కావచ్చు, అభినందనలు. కానీ నెహ్రూ గారు చూపెట్టినటువంటి మార్గము వలన ఆనాడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విద్య, వైద్య సంస్థలు, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం వల్ల ఈ దేశం ఇంత పురోగతి చెందింది. కట్టిన బంగ్లాకు మీరు రంగులు వేయచ్చు, డివియేషన్స్ చేయొచ్చు, కానీ మీ మీద గొప్ప చేసినామని చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అందులో మళ్ళీ నెహ్రూ గారిని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి పురంధేశ్వరి ఇతర బీజేపీ నాయకులకు జాగ్రత్త అని చెప్తాను. ఎందుకంటే భారతదేశ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఒక ముందు చూపు కలిగినటువంటి వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. వారి ముందు చూపు వల్ల ఈరోజు 100 దేశాల్లో మరి సీఈఓలు మన భారతీయులు ఉన్నారు. गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की जा रही तनकीदों की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा कि रामचंद्र राव वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के लिए चपरासी की तरह का काम कर रहे हैं। तेलंगाना के मफादात की कीमत पर अपने ओहदों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने रियासत के लिए मखसूस हैं तो मरकज़ पर दबाव डालते हुए पालमूर रंगारेड्डी को कौमी दर्जा दिलाएं। बीजेपी के लीडर जो रियासत तेलंगाना के लिए मरकज़ से एक पैसा नहीं ला सकते वो वज़ीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। तेलंगाना से इंतखाबात जीतने वाले 8 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट दहली जाकर सो रहे हैं और ये लोग किसानों के मफादात के लिए काम नहीं कर सकते। తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేసేటువంటి అంశంలో
పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్న రామచంద్రరావు గారు అసలు గులాంగిరి అనేటువంటి పదానికి నిర్వచనం నరేంద్ర మోదీ గారి దగ్గర చేతులు కట్టుకొని ఆమడు దూరం నిలబడి మీ బీజేపీ శ్రేణులకి ఆ గులాంగిరి అనే పదం వర్తిస్తుందన్నమాట అంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టి మీ పదవులను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించినటువంటి రైతుల बीआरएस पार्टी के लीडर बी विनोद कुमार ने तुम्मिडी हट प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने पहले तुम्मिडी हट की मुखालिफत की थी और दिल्ली में यूपी हुकूमत ने भी इसकी मुखालिफत की थी. एक साल पहले बीजेपी एमपी बंडी संजय ने कहा था कि वो 6 माह में तुम्मिडी हट प्रोजेक्ट की इजाज़त लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई. विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को ये ड्रामे बंद करने चाहिए. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला केसीआर ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को तजावीज़ रवाना की थी, लेकिन बीजेपी के वज़ीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया. बीजेपी और कांग्रेस तुम्मिडी हट के मामले में सिर्फ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं. నిర్మిస్తే దాదాపు మా గ్రామాలు 22 గ్రామాలు మునుగుతాయి. చంద్రాపూర్లో 8 గ్రామాలు గడిచొర్రిలో దాదాపు 2000 పైచిలుకు హెక్టార్ల భూమి మునిగిపోతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము అనుమతి ఇవ్వము అని చెప్పుతూ మీరు ఈ హైట్ మీద 152 మీటర్ల హైట్తోని తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర మీరు టెండర్లు పిలుస్తున్నారు, కాంట్రాక్ట్లు ఇస్తున్నారు, అనుమతులు లేకున్నా మీరు పనులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పనులన్నిటి కూడా ఆపండి. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 152 మీటర్ల ఎత్తున నిర్మించడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వము అని చెప్పింది మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने विशाखा स्टील वाक़े के मुतासरीन से मुलाकात की. चंद्रबाबू नायडू हुकूमत पर तनकीद करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने रियासती वज़ीर लोकेश के रिमार्क को गैर इंसानी करार दिया. जगन ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन की मदद करने में नाकाम रही है. साबिक में मरने वाले मुलाजिमीन के अपराधी खानदान को अभी तक नौकरी भी फराहम नहीं की गई है. हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार हो रही है. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के हमरा बिलाल मस्जिद के करीब फ़िज़ा होटल के पास जारी नाले की सफाई के कामों का तफसीली मुआयना किया. मानसून सीज़न की आमद के पेश नज़र इस मुआयने का मकसद बारिश के पानी की रवानी को यकीनी बनाना और इलाक़े में पानी जमा होने के मसाइल से बचाव के इंतज़ामात का जायज़ा लेना था. मुआयने के दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों से जारी कामों की रफ्तार और मियार के बारे में मालूमात हासिल की. उन्होंने हक्काम को हिदायत दी कि नाला सफाई के कामों को तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि शदीद बारिशों के दौरान आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी या पानी जमा होने की शिकायत का सामना ना करना पड़े. इस मौके पर इलाक़े के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के अज़म का इयादा भी किया गया. मुकामी आवाम ने मानसून से कबल एहतियाती इक़दामात और नालों की बरवक्त सफाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे बारिशों के दरमियान दरपेश मसाइल में खातिर ख्वाह कमी आएगी. इसके अलावा मुकामी आवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन का मज़कूरा काम करवाने पर भी शुक्रिया अदा किया. तेलंगाना हज कमेटी से फरीज़ा हज की तकमील के बाद हुजाज इकराम की वापसी का 15 जून से आगाज़ होगा. फरीज़ा हज की तकमील के बाद तेलंगाना के हुजाज इकराम की मदीने मुनव्वरा रवानगी का आगाज़ हो चुका है. मदीने मुनव्वरा में 7 दिन क़याम के बाद हुजाज इकराम हैदराबाद वापस होंगे.
صدرنشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی واپسی کے لیے موقع پر مؤثر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جی ایم آر اور دیگر سرکاری اداروں کے عہدیداروں کو حجاج کرام کی واپسی کے لیے موقع پر بہتر سہولیات کی فراہمی اور ضروری امور کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت دی ہے۔ حجاج کرام کا پہلا قافلہ 12 جون کی صبح 6 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ دوسرا قافلہ اسی دن دوپہر 3:15 پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ جملہ 23 قافلوں کے ذریعے حجاج کرام کی واپسی عمل میں آئے گی اور آخری قافلہ 23 جون کی رات دیر گئے 1 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن، کسٹمز اور دیگر امور کی عاجلانہ تکمیل میں حج کمیٹی کے عہدیدار اور والنٹیئرز تعاون کریں گے، جبکہ مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا پہلے قافلے کا استقبال کریں گے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرناٹک کے ایسے طلباء کو 100% فیس کی ادائیگی کریں گے جو اردو یونیورسٹی کے BA جرنلزم اور MA جرنلزم کے کورس میں داخلہ لیں گے۔ پروفیسر احتشام احمد خان، ڈین و صدر MCJ کے مطابق ریاست کرناٹک نے ایک بہت ہی خوش آئند اعلان کیا ہے، جس سے توقع ہے کہ ریاست کرناٹک سے مزید طلباء BA جرنلزم اور MA MCJ کورس میں داخلہ لینے کے لیے آگے آئیں گے۔ ان کے مطابق ایسے طلباء جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں انڈر گریجویشن BA JMC اور پوسٹ گریجویشن MA JMC میں زیر تعلیم ہیں، ان کی فیس اردو اکیڈمی کرناٹک ادا کرے گی۔ پروفیسر احتشام احمد خان نے کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق رجسٹرار ڈاکٹر مظہر الدین خان اور ممتاز صحافی جناب اعظم شاہد کا شکریہ ادا کیا، جن کی خصوصی دلچسپی کے باعث کرناٹک کے جرنلزم پڑھنے والے طلباء کے لیے فیس کی ادائیگی کا فیصلہ لیا گیا۔ انہوں نے بطور خاص کرناٹک اردو اکیڈمی کے صدرنشین محمد علی قاضی، رجسٹرار ڈاکٹر معاذ الدین خان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس CV آنند نے بدھ کے روز عادل آباد ضلع میں نصب کیے گئے 300 نئے CCTV کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی عوامی تحفظ، جرائم کی روک تھام اور مؤثر پولیسنگ کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ DGP نے مقامی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نگرانی کے جدید نظام کا افتتاح کیا۔ ضلع پہنچنے پر پولیس کے مسلح دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ انہوں نے پولیس گیسٹ ہاؤس کے احاطے میں ایک پودا بھی لگا کر شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پولیس حکام کے مطابق ضلع بھر میں نصب کیے گئے 300 نئے CCTV کیمروں میں 220 دیہی علاقوں اور 80 شہری علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے جرائم کی نگرانی، ٹریفک نظم و نسق، مشتبہ افراد کی شناخت اور عوامی سلامتی کے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے DGP CV آنند نے کہا کہ تلنگانہ پولیس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عوام کو بہتر حفاظتی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست کے سرکاری و خانگی انجینئرنگ کالجز میں BTech نشستوں پر داخلوں کے لیے ایپسیٹ کونسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے دفتر میں کنوینر پروفیسر V بالاکرشنا ریڈی اور کمشنر ٹیکنیکل ایجوکیشن سری دیو سینا کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں اس شیڈول کو منظوری دی گئی۔ اس بار بھی کونسلنگ کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا، جو 19 جون سے شروع ہو کر اگست کے وسط تک چلے گا۔ پہلے مرحلے میں ویب آپشن 25 جون سے 1 جولائی تک دیے جا سکیں گے، جبکہ پہلے مرحلے کی نشستیں مختص کرنے کا عمل 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔
दूसरा मरहला 17 से 28 जुलाई तक चलेगा। नशिस्तों के अलाटमेंट के बाद तलबा को अलाट करदा कॉलेज में खुद जाकर रिपोर्ट करना होगा। 13 जुलाई से 7 अगस्त तक काउंसलिंग का आखिरी मरहला मुनक्किद किया जाएगा। कॉलेजेस में अंदरूनी शाखों की तब्दीली का अमल 12 से 17 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि स्पॉट एडमिशन के लिए रहनुमायाना खतूत 16 अगस्त को वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग का नया तालीमी सेशन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तेलंगाना टीचर अहलियत टेस्ट टेट के लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। महकमे तालीम के अहदेदारों की जानिब से टेट इम्तिहानात के हाल टिकट्स बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। इम्तिहान में शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने हाल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेट इम्तिहानात 16 जून से शुरू होकर 22 जून तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात रवायती कागज़ और कलम की बजाय कंप्यूटर पर मुबनी फॉर्मेट में मुनक्किद होंगे। शहर हैदराबाद में हालिया 2 हफ्तों के दौरान शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का चौथा वाक़या पेश आया। इस बार मलकाजगिरी के मारुति नगर इलाके में अरुण ने अपनी बीवी निशा रानी को अपने एक साथी की मदद से गोली मार दी। ये वाक़या चारशंबे की सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। बताया जाता है कि अरुण ने अपनी पहली बीवी से अलहदगी के बाद अपनी निस्बती बहन से शादी कर ली थी। अरुण के खिलाफ इससे पहले भी पुलिस में केस दर्ज है। अरुण की मां ने बताया कि उनके बेटे से झगड़े के बाद उसने अपनी बहू निशा रानी को मायके भेज दिया था। अरुण ने बीवी को बातचीत के लिए बुलवाया और उसका कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि अरुण ने निशा पर 3 गोलियां चलाईं। ये भी पता चला है कि अरुण ने 5 साल पहले निशा रानी से शादी की थी। इस वाक़े के बाद अरुण फरार है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पता चला है कि अरुण हथियार रखने के सिलसिले में अंबरपेट में गिरफ्तार हुआ था और मार्च में जेल से रिहा हुआ था। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ఈరోజు మార్నింగ్ 5:30, 6 o'clockలో మాకు డైర్ 100 కాల్ వచ్చేసింది. అందులో మారుతి నగర్లో ఒక ఫైర్ అయిపోయి ఒక లేడీ చనిపోయిందని చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా మా పెట్రోల్ కారు రీచ్ అయింది. ఆ కన్ఫర్మ్ చేసుకోగానే ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తే ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ ఇమ్మీడియట్గా రీచ్ అయ్యారు. అతను స్పాట్ చూసిన తర్వాత సీనియర్ ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. మీన్వైల్ నేను మా డీసీపీ మల్కాగిరి శ్రీధర్ సార్ అందరూ కూడా మారుతి నగర్ సీన్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్కు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఫైరింగ్ అయింది. అక్కడ 3 రౌండ్ల ఎంటీ కార్ట్రిడ్జ్ పడిపోయినాయి. కూల్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఉన్నది అమ్మాయి. హెడ్ ఇంజరీ అయి ఉన్నది. తెలుసుకో భర్త అక్కడ ఏం లేడు. అయితే అరుణ్ వాళ్ళ మదర్ లక్ష్మమ్మ ఆమెను ఎగ్జామ్ చేసేస్తే మార్నింగ్ 5 o'clock అట్లా చప్పుడిని పడింది అత్తమ్మ అన్నట్టు. ఆమె అక్కడ రీచ్ అయ్యేలోపే సౌండ్ వచ్చేసింది. ఆమెకు సౌండ్ విన్నది. ఆమె పోయి చూసేవారిని అక్కడ పడిపోయినది. అరుణ్ అక్కడ పారిపోయినప్పటికీ లేడు. భార్యపై అనుమానం ఉన్నట్టు తెలిసింది. కానీ ఎందుకు ఎక్కడ అనేది ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది మేము అరెస్ట్ చేయగలిగితేనే చెప్పేస్తాము. ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేస్తాం. దాని గురించి ఒక 3 టీములు ఫామ్ చేశాము. ఎంత తొందరలో చెక్ చేస్తాం. सैबराबाद पुलिस ने गच्चीबौली के हिलराज बिलास में हुई रहजनी की संगीन वारदात के मामले को हल करते हुए 3 दिनों के अंदर नेपाली सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 6 जून को ये वारदात पेश आई थी। मकान मालिक और अफराद खानदान बाहर गए हुए थे। अलमारी की चाबी साथ ले जाना भूल गए थे। इसी का फ़ायदा उठाकर नेपाली टोली ने 7.8 किलो के तलाई जेवरात और 1.5 किलो चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की। खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और 3 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश से इस टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को हैदराबाद लाया गया था और मसरूखा तमाम जेवरात जब्त कर लिए गए हैं।
महकमे इंसदाद रिश्वत ACB तेलंगाना ने गुज़िश्ता रोज़ अमारत व शवारे के इंजीनियर इन चीफ मोहन नायक के मकान पर गैर महसूब असासों के सिलसिले में धावे किए थे। रात देर गए इत्तला मिली है कि तकरीबन 18 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और नकद रकम और दस्तावेजात को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि निजामाबाद में 83 लाख रुपए की अराजी, हैदराबाद के कोमपली में 3, गच्चीबौली में 4 फ्लैट तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की मालियत, मियाँपुर में 2.5 करोड़ का फ्लैट, कोकटपल्ली में 63 करोड़ रुपए का फ्लैट बताया गया है। नगद रकम 55 लाख रुपए जब्त की गई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल की शाम शदीद बारिश हुई और इस बारिश की वजह से रात देर गए तक नए शहर की कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा और ट्रैफिक देखी गई। मीरपेट मैथिली नगर कॉलोनी में अभी भी सड़कों पर पानी जमा है। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बंजाराइल्स के हदूद में वाक़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 2 चार्जिंग गन का सरखा कर लिया गया है। 7 जून को हुकाम को इस वाक़े का पता चला। बताया गया है कि नामालूम अफराद ने चार्जिंग गन को केबल के साथ निकाल लिया। मैनेजर वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। रियासत तेलंगाना हल्के मधूल बासिर में गोदावरी नदी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 3 भाई दरिया में डूबकर हलाक हो गए। हैदराबाद के काचीगुड़े के चप्पल बाजार इलाके के चंद्रशेखर, रामचंद्र और मल्लेश अपने अहल खाना के साथ बासिर आए थे। सरस्वती के दर्शन करने के बाद वो गोदावरी नदी में मुक़द्दस डुबकी लेने के लिए नीचे गए। वो गलती से एक गहरे इलाके में चले गए और डूब गए। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
مدینہ منورہ بس حادثے کے متاثرین میں ایکس گریشیا کی تقسیم کا سلسلہ جاری. ریاستی وزیر محمد اظہر الدین اور مجلس رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے ہاتھوں چیکس کی گئی تقسیم. تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرنے بی جے پی اور بی آر ایس کی سازش. جمہوریت کے لیے سنگین دھکا، تلنگانہ کانگریس کا الزام. حیدرآباد کے حدود میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا چوتھا واقعہ. ملکاج گری میں شوہر نے دوسری بیوی کو گولی مار دی. گچی باؤلی میں رہزنی کی واردات میں ملوث معمے کو پولیس نے 3 دنوں میں حل کر لیا. نیپالی ٹولی گرفتار، مسروقہ زیورات کیے گئے برآمد. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دختر ماہین اویسی نے MBBS کے امتحان میں غیر معمولی نشانات کے ساتھ امتیازی کامیابی کی حاصل. حیدرآباد کے 3 بھائی دریائے گوداوری میں غرق. نرمل ضلع کے باسر میں پیش آیا حادثہ. دبئی حادثے کے متاثرین کے لیے UAE کے تاجر ڈاکٹر شمشیر ویالیل کا عطیہ. 2.6 کروڑ روپے امداد کا اعلان. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز.